Sin brings death. पाप मृत्यु को लाती है। Sin and the curse of sin goes, joy comes into our heart. और जब पाप और पाप का अभिशाप दूर हो जाता है तो हमारे हृदयों में आनंद आ जाता है। My friend, God wants to give you the joy of salvation. मेरे दोस्तों, परमेश्वर आपको उद्धार का आनंद देना चाहते। Salvation is freedom from sin. उद्धार तो पाप से आजादी है। Salvation is being freed from the curse of sin also. उद्धार तो पाप के अभिशाप से भी छुटकारा पाना है। When sin and the curse of sin goes, joy comes into our heart. और जब पाप और पाप का अभिशाप दूर हो जाता है तो हमारे हृदयों में आनंद आ जाता है। Yes, the forgiveness of sins brings great joy. हाँ, पापों की क्षमा तो एक बड़े आनंद को लाती है। That joy of salvation is going to be given to you. उद्धार का वह आनंद आपको प्राप्त होने वाला है। Isaiah 12 and verse 3 says, यशायाह 12:3 कहता है, with joy you will draw water from the wells of salvation. तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोते से जल भरोगे। Isaac इसहाक ने sowed and God gave him 100 times harvest. बीज बोया और परमेश्वर ने उसे 100 गुना फसल दिया। Then he started digging for water. फिर उसने पानी के लिए खुदाई शुरू की। The enemies came. दुश्मन आ गए। When he dug the wells, they came and closed it. जब उसने कुएं खोदे तो वे आए और उन्हें बंद कर दिया। They were fighting with him not to get water. वे उससे लड़ रहे थे कि वो पानी ना ले But सके। he went ahead and dug one more well. लेकिन वो आगे बढ़ा और उसने एक और कुआं They खोदा। quarreled and closed that also. वे फिर उससे लड़े और उसे भी बंद कर Then he दिया। went somewhere else and dug one more well. फिर वह कहीं और गया और एक और कुआं And खोदा the water came. और पानी आ गया। Every time he dug, water came. हर बार जब वह खुदाई करता पानी आ जाता। And finally they said, और अंत में उन्होंने कहा, we cannot stop you. हम तुझे रोक नहीं सकते। God is with you. परमेश्वर तेरे साथ है। Whenever you dig, you get water. जहाँ भी तू खुदाई करता है तुझको पानी मिलता Even है। today. आज भी Dig in your life. अपने जीवन में खुदाई करते Dig रहिए। for Jesus, the living water. जीवन जल यीशु को प्राप्त करने हेतु खुदाई करें। Yes, he will bring life into you. हाँ, वह आप में जीवन को लाएगा। Sin brings death, पाप मृत्यु को लाती है, but Jesus brings forgiveness and life. लेकिन यीशु क्षमा और जीवन लाते हैं। Life comes through the forgiveness of your sin. जीवन आपके पापों की क्षमा के माध्यम से आता है। Jesus brings it to you. यीशु इसे आपके लिए लाते हैं। So keep on digging for Jesus. इसलिए यीशु की खोज में लगे रहो। The enemy will come and close everything of Jesus in your life. शत्रु आएगा और आपके जीवन में यीशु से जुड़ी हर चीज को बंद कर देगा। But you keep on digging. लेकिन आप खोज जारी रखिए, Keep on asking. निरंतर मांगते रहिए, Keep on longing for Jesus. यीशु के लिए निरंतर हाँफते रहिए And water will keep coming. और पानी आता रहेगा। The living water, Jesus will keep coming. जीवन का जल यीशु निरंतर आता रहेगा। John 7 to 39. यूहन्ना 7 से 39 में Jesus says, यीशु कहते if हैं, anyone is thirsty, let him come and drink from me. यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आकर पिए। I will make rivers of living water to flow out of his belly, मैं उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बहा दूंगा and he will have life. और उसे जीवन मिलेगा। Now I pray that this rivers of living water full of life will flow out of your belly. अब मैं प्रार्थना करता कि जीवन से परिपूर्ण ये जीवन जल की नदियां आपके भीतर से बह निकले। And I command every devil which is stopping you from living a holy life to leave you in Jesus' name. मैं यीशु के नाम से हर उस शैतान को आदेश देता हूं जो आपको पवित्र जीवन जीने से रोक रहा है कि वह आपको छोड़ दे। Father, fill them with thy Holy Spirit. हे पिता, इन्हें अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए Deliver them from all the attacks of the devil. और शैतान के सभी आक्रमणों से इन्हें बचा लीजिए In Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. आमीन। When the enemies came against Samuel and the Israelites, जब शत्रु शमूएल और इजरायलियों के विरुद्ध आए, 1 Samuel 7, 5 and 6, पहला शमूएल अध्याय 7, 5 और 6, the people of Israel cried, Samuel, pray for us, enemies are coming to destroy us. इजरायलियों ने दुहाई दी कि शमूएल हमारे लिए प्रार्थना करे क्योंकि शत्रु हमें नष्ट करने आ रहे हैं। Samuel drew water and poured it before the Lord. शमूएल ने जल भरकर उसे यहोवा के सामने उंडेल दिया And he said, we have sinned, Lord. और उसने कहा, हे प्रभु, हमने पाप किया है, Give us. हमें क्षमा कर। Yes, the water symbolizes
the forgiving power of Jesus, हाँ, जल यीशु की क्षमा करने की सामर्थ का प्रतीक है। the blood of Jesus, यीशु का लहू which cleanses us from all sins. जो हमें सभी पापों से शुद्ध करता The है। devil comes to destroy us because of the sin in us. शैतान हमारे भीतर के पाप के कारण हमें नष्ट करना चाहता, But you ask for forgiveness. लेकिन आप क्षमा मांगे, Pour the water of salvation upon yourself. अपने ऊपर उद्धार का जल उंडेलें। The blood of Jesus cleanses you from all sin. यीशु का लहू आपको सभी पापों से शुद्ध करता है। Secondly, दूसरी बात, in Genesis 1:12, उत्पत्ति 1:12 में when the waters come, जब जल के सोते फूटते हैं beautiful fruit trees blossom. तो सुंदर फलदार वृक्ष खिल उठते हैं। Yes, every blessing, every fruit will start operating in your life. हाँ, हर आशीष, हर फल आपके जीवन में संचालित होना शुरू होगा। You will be a spring of living water, आप जीवनदायी जल का सोता बन जाएंगे, bringing forth fruits जो फल उत्पन्न करता through the fruit trees. फलदार वृक्षों से। And for this, इसी कारण Jesus was nailed on the cross. यीशु को क्रूस पर कीलों से जड़ दिया गया। Exodus 17:6. निर्गमन 17:6। When the people did not have water, जब लोगों के पास पानी नहीं था, God said to Moses, परमेश्वर ने मूसा से कहा, strike the rock on the mountain. पहाड़ की चट्टान को मारना, And the water came out of the rock. और चट्टान से पानी निकल आया। The Bible says in 1 Corinthians 10:4, पहला कुरिन्थियों 10:4 में बाइबल कहती है, Jesus is the rock. यीशु ही वह चट्टान है। He is the rock which brings forth the spiritual water. वही तो वह चट्टान है जिससे आत्मिक जल निकलता है। He was beaten उसे मारा गया on the cross, क्रूस पर, and through him the life-giving waters flow. और उसी के द्वारा जीवनदायक जल प्रवाहित हुआ। Today, आज humble yourself and honor the Lord Jesus, अपने आप को नम्र करें, यीशु का आदर करें, and ask him to fill you. और उससे कहें कि वो आपको भर दे। Luke 11:13 says, लूका 11:13 कहता है, if you ask for the Holy Spirit यदि आप पवित्र आत्मा मांगे who brings that living water, जो जीवन जल लाता he है, will come और वह आएगा and he will fill you with his living waters. और वह आपको अपने जीवन जल से भर I देगा। want to pray for you right now मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करना चाहता that the हूँ Holy Spirit will come. कि पवित्र आत्मा आए। Father, पिता, wash thy children with thy blood. अपने बच्चों को अपने लहू से धो दीजिए, Cleanse them from every sin उन्हें हर एक पाप से शुद्ध कर दीजिए, and fill them with thy Holy Spirit. और उन्हें अपने पवित्र आत्मा से भर Let दीजिए। every blessing, every fruit come in their life. उनके जीवन में हर एक आशीषें, हर एक फल लगने पाए। Let them lack nothing in the name of Jesus. यीशु के नाम से उन्हें किसी बात की घटी ना हो। Holy Spirit, पवित्र आत्मा, when you filled me, you said you're going to be my friend. जब आपने मुझे भरा तो आपने कहा कि तू मेरा मित्र होगा। You've been my friend आप मेरे मित्र रहे for हैं 46 years. 46 वर्षों से। Continue to lead me. आपने मेरी अगुवाई की, You never allowed anything to be lacking in my life और मेरे जीवन में आपने किसी भी बात की घटी नहीं होने दिया, and family ना मेरे परिवार में, and ministry. ना सेवकाई में। Do it for thy children. अपने बच्चों के लिए भी ऐसा ही करें, In Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. आमीन। We have got a new mobile Jesus Calls app हमने नए मोबाइल पर की जीसस कॉल्स ऐप बनाई है, with the daily promise message coming in 6 languages. जिसमें डेली प्रॉमिस वर्स जो है प्रतिदिन की प्रतिज्ञा वचन जो है 6 भाषाओं में आता है, And we have a testimony section और फिर गवाही का विभाग है, and also live broadcasting और साथ ही लाइव ब्रॉडकास्टिंग है, of the prayers that we have in the prayer tower and our meetings. और उन प्रार्थनाओं के लिए जो हम प्रेयर टावर में करते हैं और सभाओं में करते हैं। And you can also donate through the Jesus Calls app. और आप जीसस कॉल्स ऐप के द्वारा डोनेट कर सकते हैं, योगदान भेज सकते हैं, That will be the easiest way for you to support the ministry. और ये आपके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप सेवकाई में सहयोग करें। And you can also pray with us for the needs of the ministry in one of the sections of Jesus Calls app. जीसस कॉल्स ऐप के एक भाग में आप सेवकाई की जो जो जरूरतें हैं उनके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। And you can download the Jesus Calls app onto your phone, आप अपने फोन पर जीसस कॉल्स ऐप को डाउनलोड कीजिए, Android or iOS,
चाहे वो एंड्रॉइड हो या फिर iOS हो। Scan the QR code आप QR कोड को स्कैन कीजिए which you are seeing on the screen now. जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, Or you can go to the App Store and download the app. या फिर आप ऐप स्टोर पर जाकर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। Or you can search in Google Play Store for Jesus Calls. और आप गूगल प्ले स्टोर पर जीसस कॉल्स को ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, Or Apple Store. या फिर एप्पल स्टोर पर, And you can download it on your phone. और आप इसे अपने फोन पर डाउनलोड कर सकते हैं। Precious Sister Mary Gabriel Furtado, along with you, I wish your beloved son, Showen Gabriel Furtado, a happy birthday. प्रिय बहन मैरी गैब्रियल फुर्टाडो, आपके साथ साथ मैं आपके प्रिय बेटे शोवीन गैब्रियल फुर्टाडो को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। God bless you, Showen. According to Psalm 37:40, the Lord will help you, deliver you, and save you, because you have taken refuge in Him. भजन संहिता 37:40 के अनुसार परमेश्वर शोवीन को आशीर्वाद दें। प्रभु आपकी सहायता करेंगे, आपको बचाएंगे और आपका उद्धार करेंगे, क्योंकि आपने उनकी शरण ली है। Father, let him be free. Let Showen be delivered in the name of Jesus. Let him be a free man, a new man, full of Jesus. हे पिता, उसे छुटकारा दें, यीशु के नाम से शोवीन को मुक्ति दिलाएं, उसे एक स्वतंत्र व्यक्ति बना दें, एक नया व्यक्ति जो यीशु से परिपूर्ण हो। Aaron Gabriel, a blessing in the job and a wonderful life partner. एरोन गैब्रियल अपनी नौकरी में आशीष पाए और उसे एक अद्भुत जीवन साथी की प्राप्ति हो। Sister Mary Gabriel, I be healed in Jesus' name. Touch and heal, Master, heal. The eyesight be perfectly normal. बहन मैरी गैब्रियल की आंखें यीशु के नाम से चंगी हो जाएं। हे प्रभु, आप उन्हें स्पर्श करिए और चंगा कर दीजिए। चंगा करें प्रभु, उनकी दृष्टि बिल्कुल ठीक हो जाए। Brother Gabriel, let him be delivered from alcohol. Let him be a free man and have peace in the family. In Jesus' name. Amen. भाई गैब्रियल को शराब से मुक्ति दिलाइए, यीशु के नाम से उन्हें एक स्वतंत्र व्यक्ति बनाइए और उनके परिवार में शांति स्थापित कीजिए। आमीन। God bless you.